Today we are going to start first chapter of physics, that is your vector. So first we know about what is the definition of vector. तो वेक्टर को हिंदी में we call it सदिश. The quantity which having magnitude, direction and follow triangle law of vector addition is known as vector. As for example, force, velocity, displacement, acceleration, etc. These are the vector quantities because these quantities, force, velocity, displacement, acceleration, having magnitude, direction and follow triangle law of vector addition. Next one is a scalar. The quantity which having only magnitude is known as a scalar. वे सारे क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है वो स्केलर कहलाते हैं और स्केलर को हम लोग हिंदी में अदिश के नाम से जानते हैं. तो मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ, वैसा क्वांटिटी जिसके पास लेंथ हो वो स्केलर कहलाएगा. एज फॉर एग्जांपल, we take example is mass. This has only magnitude 10 kg, 20 kg, 50 kg. These have no direction. That's why we call it a scalar. Time, this is also a scalar. Temperature, etc. These quantities have only magnitude. They have no direction and don't follow triangle law of vector addition. Next, we read about in this chapter classification of vectors. Classification of vectors. First is parallel vectors. Parallel vector. Those vectors are known as parallel vectors. Whose direction of support is same but magnitude is not same, is known as parallel vectors.
parallel vectors. We take some example to clear it. This is your A vector and this is your B vector. A vector and B vector are parallel because their direction is same. A vector is pointing about, we say this is your north, south, west and east. So A vector and B vector is pointing towards its. This is also towards its, and B vector is to also towards its. It is also towards its. तो A vector and B vector both are in the same direction. Both are in east. दोनों के दोनों वेक्टर इस डायरेक्शन की तरफ है. तो we can say that कि A vector is parallel to B vector. A vector जो है B vector के parallel है because their direction is same. They are in same direction. As for we take another example. Let me say that this is your C vector. ये C vector है जो नॉर्थ के तरफ है और ये D vector है वो भी नॉर्थ के तरफ है. तो here we say that यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि C vector और D vector दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो नॉर्थ के तरफ. तो here we can also say that कि C vector is parallel to D vector. C vector जो है D vector के parallel है. We take another example. This is your E vector and this is your F vector. E vector and F vector is also parallel. E vector is parallel to F vector because of they are also in same direction. Irrespective of, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. वैसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड भले ही सेम नहीं हो, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स उसकी लंबाई एक जैसा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका डायरेक्शन एक ही और हो, तो हम वैसे सारे वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे जिनका डायरेक्शन सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, चाहे उसका लंबाई अलग अलग ही क्यों ना हो या सेम हो तब भी ठीक है. अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तब भी वो सारे वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेक्टर. अगर वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन की तरफ है, वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं. तो नेक्स्ट वन इज पैरेलल के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर. अनदर इज एंटी पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं. निगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर या निगेटिव वेक्टर ऑब्वियसली नाम से ही स्पष्ट है, एंटी पैरेलल, जो पैरेलल का अपोजिट हो, है ना, इसलिए इसको हम लोग एंटी पैरेलल कहते हैं. जो पैरेलल का अपोजिट है, या इसी को निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये निगेटिव में है. तो लिखेंगे द वेक्टर्स whose direction is opposite to each other, is known as anti-parallel vector. Anti-parallel vector
or we can say that this is your negative vector. This is also called negative vector. Once again we repeat it. वे सारे वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे को उल्टा है, इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। वे सारे वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, वो सारे के सारे वेक्टर कहलाएंगे एंटी पैरेलल या निगेटिव वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए, सपोज करते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्या ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है? तो है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं देखूं, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट। फर्स्ट वेक्टर जो है ईस्ट के तरफ पॉइंट कर रहा है और सेकंड वाला जो वेक्टर है वो वेस्ट के तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक नहीं है, एक ईस्ट के तरफ जा रहा है, एक पूरब की ओर जा रहा है, तो एक पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। दिस इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो दिस इज योर एंटी पैरेलल। ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, या कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर का एंटी पैरेलल है, या कह सकते हैं कि ये बी वेक्टर जो है ए वेक्टर का एंटी पैरेलल है। बी वेक्टर जो है ए वेक्टर का एंटी पैरेलल है। तो दिस इज योर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है एंटी पैरेलल है किस वेक्टर का? बी वेक्टर का। या भी कैन से कि ए वेक्टर इज निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो दिस इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। वी टेक one example, this is your C vector and this is your D vector. तो C vector is anti-parallel to D vector. So this is your vector, anti-parallel vector. C vector is anti-parallel to B vector because they have opposite direction. That's why we call it anti-parallel vector. Another, we talk about coplanar vectors. Another is coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar, I mean to say that those vectors which are lying in the same plane is known as coplanar vector. जैसे ये मेरे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये दोनों मेरे हथेली है। इस हथेली पर मैं जितना भी ऐसे ऐसे पेन को लाके रख दूं तो मैं कहूंगा कि ये कोप्लेनर है, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब हुआ दोज वेक्टर्स are known as coplanar vectors which lies in the same plane. जो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं वो कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। वी टेक एग्जांपल टू क्लियर इट। सपोज ABCD एक प्लेन है, ABCD, और इसमें F वेक्टर है, G वेक्टर है, H वेक्टर है। सारे के सारे वेक्टर F वेक्टर, G वेक्टर, H वेक्टर एक प्लेन ABCD में लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि FGH जो है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो F वेक्टर, G वेक्टर,
H vectors are coplanar, 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 coplanar. F vector, G vector, H vector are coplanar because of they lies in the same plane. सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. That's why we call it coplanar. F vector, G vector and H vector all lies in the same plane. A, B, C, D एक प्लेन मैंने कंसीडर किया जिसमें सारे के सारे वेक्टर F वेक्टर, G वेक्टर, H वेक्टर लाई कर रहे हैं. तो हम कहेंगे कि सारे के सारे वेक्टर F, G, H कोप्लेनर है बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन A, B, C, D. नेक्स्ट, next topic is concept of component of a vector. यहां पर हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे. जैसे सपोज कीजिए कि दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर origin. This is your x dash and this is your y dash. This is your f vector which is acting at origin and making an angle theta with x axis. ये f vector x axis से theta एंगल बना रही है f vector. तो मैं f vector का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जानना चाहता हूं. तो x और y का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा दैट इज योर अलोंग द y एक्सिस दैट इज योर y कंपोनेंट. तो f वेक्टर हैज टू कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस जिसको हम लोग लेट मी से दैट कि दिस इज योर O, P एंड Q. OQ ये आपका कहलाएगा x कंपोनेंट, x component of f vector and this is your suppose कीजिए O से लेकर के इसका नाम मैं M दे देता हूं. तो OM that is your this let me say that this point is x comma y. तो this represent x and this represent y. This distance is x and this distance is y. तो x component of f vector is x and OM is vertical component that is your y component. तो y component of f vector. अब f vector के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. Here we calculate it. What is x? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को OPQ. OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग x निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं. तो हम लोग पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, नाम लिख लीजिए OPQ. इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, दैट मींस आप x को निकालना चाहते हैं. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट cos थीटा इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस. तो बेस तो आपका x होगा और हाइपोटेनस आपका f है. तो x इज इक्वल टू f cos थीटा यहां से आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू f cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू f cos थीटा आया. यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वेक्टर का.
यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे, जब कभी भी हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा तो देखेंगे कि जिसके साथ एंगल अटैच है उसमें हमेशा कॉस आता है, यानी x इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होगा। और एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के जो अपोजिट साइड देख रहे हैं हम लोग बाई को देख रहे हैं, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट बाई कंपोनेंट। तो थीटा के सामने में हमेशा साइन लगेगा, तो एफ वेक्टर का जो बाई कंपोनेंट होगा जिसको हम ड्राइव भी कर रहे हैं, once again in triangle, in right angle triangle OPQ में हम लोग क्या कर रहे हैं, OPQ में हम लोग साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट साइड क्या है, y है, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, f। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बाई बटा f, तो y इज इक्वल टू तो f y बाई f होगा। तो y इज इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा y बाई एफ, और ये साइन थीटा है। तो y इज इक्वल टू ये f है, y इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, दिस इज योर बाई कंपोनेंट। ये आपका बाई कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। Let me clear it with one example. सपोज कीजिए कि आपका ये ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये कोई फोर्स F है जो इस पॉइंट पे 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ये 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। F इज इक्वल टू ये 20 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। हम इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट मींस x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या बताए थे, F cos थीटा। तो F यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 20, थीटा यहाँ पे दे रखा है, x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना के इस पॉइंट पे F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ जाएगा F cos थीटा होगा, और F cos थीटा जो आपका होगा वो 20 और cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का आप मान जानते हैं, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दे 20 इंटू √3/2 दैट इज योर 10√3 यूनिट का ये फोर्स लगेगा। अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है Fy, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। आपका फोर्स दिया हुआ है F बराबर कितना 20 न्यूटन, sin थीटा sin 30 डिग्री, और 20 sin 30 का वैल्यू वी नो 1/2, 2 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपका निकल गया। फिर एक और एग्जांपल इस पे लीजिए। मान लिया जाए कि एक पॉइंट A है जहां पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो वंस अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं 40 और इसका एंगल में cos लेते हैं, तो ये cos 60 हो जाएगा। 40 cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये 20, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, कॉल इट ABC। वर्टिकल कंपोनेंट अगर Fy लेना है तो क्या हो जाएगा 40 sin 60 डिग्री। 40 sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2,
प्लेस इट √3/2, 20 टाइम्स कट जाएगा और 20√3 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन this is your origin x axis, this is your y axis, this is your a vector and this is b. Take the projection of a vector on x axis. So projection means b actually take the component of a vector along the x axis. We name it a, we name it b. So here OB is the projection of a vector. OB जो लेंथ आएगा along the x axis, ये a वेक्टर का प्रोजेक्शन कहलाएगा। और a वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर इस OB के along निकालना हो तो इसके लिए हम लोग एक रिजल्ट पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along OB वेक्टर को मैं b वेक्टर नाम दे रहा हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along b vector is equal to a dot b divided by or along b vector divided by modulus of b। यानी a वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर b वेक्टर के along निकालना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पर निकालना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर निकालना है, तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना रहता है, जैसे ऑन के बाद वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालना है, तो ऑन वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा डॉन। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बी टेक और अनदर एग्जांपल टू क्लियर इट। दिस इज योर, सपोज कीजिए कि आपका ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, या भी से कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ऑन के बाद वाला जो वेक्टर रहेगा, ऑन के बाद वाला वेक्टर डाउन हो जाएगा। ऑन के बाद वाला लाइन हम लोग पढ़ेंगे और ऑन के बाद में जो आएगा वो उस वेक्टर को हम लोग डाउन करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं, जैसे सपोज कीजिए कि ये सी वेक्टर है और ये ऑरिजिन पे एक्ट हो रहा है और ये दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। हम सी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं डी वेक्टर पे। सी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना चाहते हैं? डी वेक्टर। तो हम लोग यही रूल को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकाले थे, या ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हम बी वेक्टर के अलोंग निकाल रहे थे, तो जिसके अलोंग निकाल रहे थे वो वेक्टर डिनोमिनेटर में था। यानी जो ऑन है, जिस पे हम प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, वो वेक्टर हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर। तो वी कैन राइट ऑन के बाद जो वेक्टर है वो डी वेक्टर है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ऑन के बाद वाला जो वेक्टर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो वी कैन राइट सी डॉट डी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी। यहां पर ऐसे भी कर सकते थे। सपोज कीजिए कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर निकालना है, तो वी कैन टेक डॉट प्रोडक्ट डी डॉट सी या सी डॉट डी, बोथ हैव सेम वैल्यू। फिर इसके बाद हम लोग देखिए कि ऑन के बाद में कौन वेक्टर आया है? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर डिनोमिनेटर में चल जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। तो दिस इज द
all about the concept taking finding out the projection of vector along any vector। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना था, यहाँ पे देखे कि सी वेक्टर का प्रोजेक्शन डी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है, या ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे निकालना है आपको, वो ध्यान से आप पढ़िए लाइन को। कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन के बाद वाला जो वेक्टर है वो डाउन हो जाएगा। ऑन के बाद में बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। समझ में आया बात? तो यहां पर भी वही काम किए हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर, तो सी ऑन के बाद है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर डिनोमिनेटर में गया है। यहां पे अगर डी वेक्टर होता, डी ऑन सी वेक्टर होता, ऑन के बाद में अगर सी वेक्टर होगा तो जो ऑन सी वेक्टर है तो सी वेक्टर डाउन में चला गया। तो आपको जब कभी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालना हो तो आप सबसे पहले सेंटेंस को बढ़िया से पढ़िए और ऑन के बाद वाला जो वेक्टर है उसको आप डाउन कर दीजिए, मतलब उसको डिनोमिनेटर में रखिए। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। वी टेक one example to clear it, how we calculate projection of a vector on b vector. Let me take example. This is your a vector 3i cap plus 4j cap plus 6k cap, और this is your b vector, एक example 5i cap plus 6j cap plus 8k cap। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, अभी मैंने थ्योरी में बताया था कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे आपको निकालना है। ऑन के बाद वाला आप लाइन पढ़िए, ऑन के बाद ये बी वेक्टर है, ऑन के बाद में ये बी वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आराम से लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ऑन के बाद में कौन वाला वेक्टर है, बी वेक्टर, तो डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वी कैन सिंपली कैलकुलेट ए डॉट बी। यहां पे हम लोग ए डॉट बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा। आपको जो दिया गया वेक्टर है उसका ए डॉट बी निकाल ले और फिर मैग्नीट्यूड तो निकालते हैं। ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर इज गिवन 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर इज गिवन 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। आप ए डॉट बी निकाल लें आसानी से। अगर इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो, दो वेक्टर अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में हो तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई का कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, जे के कोफिशिएंट में जे से और के कोफिशिएंट में के से। तो अगर हम आई के कोफिशिएंट में आई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आई का कोफिशिएंट में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 3 जा 15 आई कैप, 4 6 जा 24 जे कैप प्लस 8 6 जा 48 के कैप। अब ए डॉट बी आपको मिल गया, और जब कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर इस फॉर्म में रहे और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सीधे आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे का जे के साथ, के का के के साथ करें, और फिर आप यहाँ पे बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लें। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मींस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 36 प्लस 64। एट दिस यू विल गेट 6 4 10, 5 15 का 5 कैरी हाथ पे 1, और 6 3 9, 9 2 11 और 1 125 14 15
34 9 2 125 मैग्नीट्यूड इज योर 125। तो बी प्लेस द वैल्यू, यहां पे हम लोग ए डॉट बी और बी के मैग्नीट्यूड के वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो ए डॉट बी गेट 15 आई कैप प्लस 24 जे कैप प्लस 48 के कैप डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 125। दिस इज योर आंसर। 15 आई कैप 24 जे कैप 48 के कैप, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालेंगे। सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, फिर जिस वेक्टर का, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो दिस इज योर आंसर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपका बी वेक्टर पे हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक आपका सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है। सी वेक्टर का प्रोजेक्शन आप डी वेक्टर पर लेना चाहते हैं। सी वेक्टर इज, लेट मी से दैट आई कैप जे कैप के कैप। डी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। हम सी वेक्टर का प्रोजेक्शन डी वेक्टर पे निकालना चाहते हैं, बट दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन इज प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर। तो दिस इज नथिंग बट सी डॉट डी डिवाइडेड बाई, आप ध्यान से देखिए थ्योरी में बताया गया था कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना था। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे निकालना था वो वेक्टर को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर है, मतलब डी वेक्टर जो है आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज सेम। अब आपको सी वेक्टर और डी वेक्टर दिया गया है, आप दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आसानी से। पहले लिख ले, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आसानी से। सी वेक्टर इज गिवन आई कैप सी वेक्टर इज आई कैप सी वेक्टर इज C vector is I cap plus j cap plus k cap. D vector is 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. तो C डॉट D आप निकालिए, सेम प्रोसेस है जैसा आपको हम अभी पीछे में बताए थे। I का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ j का 3 है, 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 4 है, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। साथ ही साथ आपको डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ने वाला है, तो आप डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल ले। डी वेक्टर इज गिवन, डी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू कैन कैलकुलेट इजिली, स्क्वायर रूट ओवर i का कोफिशिएंट, हियर i का कोफिशिएंट इज 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। यू विल कैलकुलेट इट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, दिस इज गोइंग टू बी 20 और प्लस 9 रूट 29। इसका मतलब डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 29 और सी डॉट डी ऊपर में निकाल चुके हैं 9। प्लेस द वैल्यू हेयर, तो सी डॉट डी इज 9 एंड डी इज रूट 29। दिस इज योर आंसर। तो whenever you have to calculate projection of a given vector to another vector, तो आपको जिस वेक्टर पर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है
आप उस वेक्टर को, जिस वेक्टर पर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, उस वेक्टर के को डिनोमिनेटर में रख के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल जाएगा इजिली। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। नाउ वी रीड अबाउट multiplication of a vector, multiplication of a vector, multiplication of vector. So in physics we mainly read about there are two types of vector, multiplication of vector. One is your dot product. Dot product is also known as a scalar product, a scalar product. And another is your cross product. Second one is your, this is your a dot product, या इसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. और another is your क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट. So there are two types of multiplication of vector. Mainly one is your dot product, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अनदर इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे. तो रीड अबाउट डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं फिजिक्स में. टू क्लियर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल we read about the definition of dot product. So dot product is defined as, dot product को हम लोग डिफाइन करते हैं. let me take two vectors, a vector and b vector, a vector and b vector, and angle between them, and angle between them is theta. हमने दो वेक्टर कंसीडर किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसके बीच का एंगल थीटा कंसीडर किया. सपोज कीजिए दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, एंड you know about angle between two vectors. This is your tail and this is your head. This is your tail and this is your head, and angle between two vector means angle between the tail and the smallest angle. दो वेक्टर के बीच के टेल के बीच का एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है, और टेल के बीच में भी वो एंगल हम जो लोग कंसीडर करेंगे जो दोनों वेक्टर के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो. तो थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल. हियर अनदर एंगल इज फॉर्म टेल एंड टेल 2 पाई माइनस थीटा. पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, दैट मीन्स 2 पाई का होता है. तो हम लोग 2 पाई माइनस थीटा वाला एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज एंगल का डिफरेंशियल होता है कि दो वेक्टर के बीच में वो एंगल होता है वेक्टर का जो उसके टेल के बीच का एंगल होता है. तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और थीटा और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिया, और एंगल में हम लोग हमेशा टेल के बीच के एंगल को कंसीडर करेंगे, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वेक्टर का उसी एंगल को कंसीडर करेंगे. तो डिफाइन इसको किया गया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनटू में कॉस थीटा. मतलब ए डॉट बी को डिफाइन किया गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. जहां पे थीटा जो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, और थीटा जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है. तो वी कैन कैलकुलेट हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए
modulus of b. And you can exact calculate theta is also. Theta is equal to, we can write cos theta is equal to हम निकालना चाहते हैं cos के पावर -1. we call it inverse because -1 is a symbol for inverse. Note it is the reciprocal of like that. a के पावर -1 is equal to 1 by a के पावर m. This is not like that because -1 is symbol for used inverse function, cos inverse, sin inverse, tan inverse. All these trigonometric ratio you read about in mathematics in detail way. Here in physics we use theta. Theta is equal to cos inverse a dot b divided by modulus of a modulus of v. That's over. So with this help of formula you can exactly know the angle between theta, which is going to be included between a vector and b vector. So theta is cos inverse a dot b divided by modulus of a modulus of v. इस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज आस्क्ड so many question in boards as well as so many competitive exam. तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है. दो वेक्टर के बीच में जब कभी भी आपको एंगल निकालना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, न कि क्रॉस प्रोडक्ट का. तो भी whenever we calculate angle between two vectors, we use dot product. Never use cross product. ये बहुत डॉट प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना हो तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करें, न कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें. तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट मी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम and boards as well. A vector is equal to, if A vector is equal to 3i cap plus 4j cap plus 6 lambda k cap and B vector is equal to 2i cap plus 6j cap plus 9k cap, both are orthogonal. That means perpendicular. ऑर्थोगोनल जो फिजिक्स में वर्ड यूज होता है वो परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है. आप लोग ऑर्थोगोनल वर्ड्स मैथ फिजिक्स में बहुत ज्यादा सुनिएगा. तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 लैम्डा के कैप. बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप है. ये आपका 2i कैप लिखा हुआ है. 6j कैप प्लस 9k कैप, बोथ आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर. देन फाइंड लेम्डा. देन यू हैव टू कैलकुलेट लेम्डा. तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का बेस्ट वे होता है कि आपको ये दोनों वेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है. तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. a डॉट बी इज इक्वल टू, क्या पढ़े हम लोग, a वेक्टर का मॉडुलस, b वेक्टर का मॉडुलस एंड इनटू में cos थीटा. Here theta is angle between two vectors which is given your question कि a vector और b vector both are orthogonal. That means angle between them is 90 degree and you know
cos 90 इज गोइंग टू बी 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू cos 90 इज गोइंग टू बी 0, तो ये 0 हो जाएगा। और a डॉट बी, a वेक्टर क्या है? a वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 लेमडा k कैप डॉट b वेक्टर आपका क्या है? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप इज इक्वल टू 0। ये दो वेक्टर दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है, तो लेमडा निकालना है। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने 0 कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 लेमडा इंटू 9, 9 6 जा 54 लेमडा इज इक्वल टू 0। We can calculate easily lambda and this is your unknown quantity and this is your answer। तो इस तरह से हम लोग unknown का जो यहाँ पे lambda था उसका आसानी से सॉल्यूशन कर पाए। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये दो वेक्टर है, दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन्स वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो a डॉट बी, a वेक्टर का मॉडुलस, b वेक्टर का मॉडुलस cos 90 एंड cos 90 is 0। तो a डॉट डी बी बराबर 0 एंड we can calculate lambda here easily। तो this is the most important part of the dot product। and another take example, one example, let me say कि this is your a vector is equal to 5i cap plus 6j cap plus 8k cap and v vector is equal to 2ki cap plus 4j cap plus 9k cap। both are orthogonal, then find the value of k। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। वंस अगेन यहाँ पे आपको अननोन क्वांटिटी के रूप में k का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत फिर से दोबारा उसी तरह से बहुत आसान है। दोनों ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। फिर से स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस में लिख भी सकते हैं। a वेक्टर का मॉडुलस, b वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a डॉट बी का वैल्यू वंस अगेन 0 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आसानी से ले लेते हैं। तो यहीं से मैं ले रहा हूं। मैं बताया था कि जब कभी भी दो वेक्टर दिया गया हो और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो i का कोफिशिएंट में i के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टू जा 10k कैप, 10k सॉरी ये 10 आ जाएगा, 5 टू जा 10k आ जाएगा, यहां पे 10k आ जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे। सिमिलरली यहां पर भी 6 4 जा कितना होगा? 24। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे प्लस 8 9 जा कितना होगा? 72 लिख के बराबर 0। और फिर आप इजिली देयरफॉर k इज इक्वल टू आप इजिली यहां से कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पे बहुत सारा पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही तरीका है कि आप वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और फिर आंसर आसानी से निकाल लें। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap and v vector is equal to
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये दो वेक्टर आपको दे रखा है और कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल निकाले। तो आपको बताया है कि जब कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसका सॉल्यूशन आसानी से लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और cos थीटा होता है। एंड नाउ cos थीटा इज गोइंग टू बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। यू कैन कैलकुलेट ए डॉट बी। तो हम यहां पे वापस से ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख लेते हैं, उसका ए डॉट बी निकाल लेते हैं और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ए डॉट बी जो आपका होगा, ए डॉट बी इज इक्वल आई इंटू आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू आपको आया है वो 7 आया। सिमिलरली आप ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल ले। ए का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। दिस इज योर 1 प्लस 4 प्लस 16 रूट 21 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ले। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा रूट 3। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, जितना भी जरूरी का चीज था ए डॉट बी को निकालने के लिए, वो हमने दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने के लिए वो सारे का सारा हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई ए का मॉडुलस रूट 21, बी का मॉडुलस रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 21 इंटू 3 and 7 by root 63. So this is your answer. Similar question I give you as a homework. You can solve the question at your home if you are interested to do this. Question is find the angle between C vector is equal to I cap minus J cap plus K cap and D vector is equal to 2I cap plus 4J cap plus 9K cap. इस तरह से आप सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं. अब हम लोग इसी में अगला कॉन्सेप्ट, there are three types of unit vector, mainly unit vectors. Along the x-axis we call it I cap. यूनिट वेक्टर होता है तो आई लिख के उसके ऊपर कैप का साइन देते हैं. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है. मैं यहाँ डायग्राम से दिखाने की आपकी कोशिश करता हूँ. ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है. एक मिनट, वापस से ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. जेड एक्सिस ये आपके तरफ ऐसे होगा. मैं जेड एक्सिस को ऐसे दिखा रहा हूं. ये जो ऐसे इस प्लेन में है, एक्चुअली प्लेन में है नहीं, ये प्लेन से बाहर आपके तरफ है. ये प्लेन में ऐसे ऑरिजिन पे ऐसे परपेंडिकुलर है. ये आपका जेड एक्सिस है. एक जेड एक्सिस इधर भी है तो इसके अंदर में भी होगा
तो उसको मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूं। ये इसके अंदर का जेड एक्सिस है जिसको मैं माइनस जेड बोल रहा हूं। जिस तरह से ये प्लस एक्स है उसी तरह से ये माइनस एक्स इधर भी होगा, माइनस एक्स, और ये प्लस वाई है तो इधर माइनस वाई भी होगा। तो यूनिट वेक्टर लेते वक्त अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है तो आई कैप प्लस में लिखेंगे, अगर ये माइनस एक्स एक्सिस होता तो हम इसके लिए माइनस आई कैप लिखते। ये वाई एक्सिस होता तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते वो जे कैप होता, और ये माइनस वाई एक्सिस होता तो इसके लिए माइनस जे कैप। सिमिलरली ये प्लस जेड एक्सिस होता, प्लस जेड एक्सिस होता तो इसके लिए के कैप, और ये माइनस जेड एक्सिस होता, माइनस जेड एक्सिस होता तो ये माइनस के कैप होता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर along the x axis, y axis and z axis। मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम x एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो i कैप होता है, y एक्सिस के along लेते हैं तो j कैप, और z एक्सिस के along लेते हैं तो k कैप होता है। अगर प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस i कैप, j कैप, k कैप, अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस i कैप, माइनस j कैप, माइनस k कैप। इस तरह से हम लोग 3 तरह का यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल फिजिक्स में करने वाले हैं, और होल फिजिक्स 11 और 12 दोनों में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका और आगे वाला पार्ट देखते हैं। इसका अगले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि 2 वेक्टर है, इस तरह से लिखा गया है, ए वेक्टर बराबर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको सपोज कीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इस तरह से आपको लिखा गया है। एक मिनट, मैं इसको सही से b1 i कैप प्लस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, और आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बार करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि a डॉट b अगर आपको निकालना है तो आप क्या करने वाले हो। आप कुछ नहीं करो, i और i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, a1 और b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a1 b1 होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 से मल्टीप्लाई होगा तो a2 b2 होगा, प्लस a3 b3 से मल्टीप्लाई होगा तो a3 b3 होगा। तो आपको जब कभी भी a डॉट b निकालना हो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां भी आप लोग यूनिट वेक्टर के केस में डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको i का डॉट i के साथ ले रहा है, तो i का डॉट i के साथ ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, i का डॉट अगर i के साथ आप ले रहे हैं तो इसका मतलब इधर देखिएगा, इसका मतलब है कि आप x एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 है। और i डॉट i का अगर आप डिफरेंशिएशन देखेंगे तो i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड, और ये cos 0। i यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब वो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 × 1, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा बताइएगा। तो cos 0 का वैल्यू आपका 1 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से j डॉट j का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, उसी तरह से k डॉट k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग सेम टाइप का अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा। अगर डिफरेंट टाइप का रहता, अगर i डॉट j होता या j डॉट k होता या k डॉट i होता, तब इसका वैल्यू 1 नहीं होने के बजाय इसका वैल्यू जो होता वो 0 होता, इसका वैल्यू आपका 0 होता, क्योंकि इस बार एंगल हो जाता 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के कारण ए बी कॉस थीटा करते, और cos 90 का वैल्यू होता 0 और cos 0 का वैल्यू होता cos 90 का वैल्यू होता 0, जिसके कारण i डॉट j डॉट k डॉट i का वैल्यू जो है 0 हो गया। इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट किस तरह से 2 वेक्टर कर लेते हैं। मेनली 3 तरह का यूनिट वेक्टर होता है, along the x, along the y, along the z, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये सारा चीज देखे।
लास्ट इसके प्रोडक्ट में है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, उसको देखते हैं। तो अगला हेडिंग होगा क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको देखिए, इसको भी किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको भी देखिए। इट इज डिफाइंड एज, इसको परिभाषित किया गया है। लेट मी टेक टू वेक्टर्स, A vector and B vector, and angle between them is थीटा। हमने दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमने थीटा लिया और इसको डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज गोइंग टू बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा, और साथ ही साथ एन कैप। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। ये वैसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो एन कैप आया है यूनिट वेक्टर, ये दिए गए वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, भीच आर परपेंडिकुलर टू गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो दिए गए ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और सपोज कीजिए कि ये आपका बी वेक्टर है, और ये दोनों के बीच का एंगल जो है आपका थीटा है। आप ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसे करें, ए क्रॉस बी, आप अपना राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखें और इस तरह से रखें कि आपका जो थंब हो वो अलोंग द जेड एक्सिस हो, जेड एक्सिस की तरफ हो, और आप अपना जो हाथ की जो शेष 4 फिंगर है, आप उसको स्मॉलेस्ट एंगल जो बन रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, उसके तरफ कर्ल करें, यानी अपनी चारे अंगुलियां को बी वेक्टर की तरफ कर्ल करें, मोड़े। तो आपका जो थंब होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप का डायरेक्शन होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि एन कैप जो आया है वो गिवन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इज लाइक दिस, ऐसे होता है एन कैप, लेकिन हम इसको हवा में बना तो सकते रही, इसलिए दिस इज योर एन कैप। ये आपका एन कैप है और दिस इज योर एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी है। और एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो दिए गए वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है। ये आपका दिए गए वेक्टर ये दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमने ए क्रॉस बी निकाला। अगर सपोज कीजिए किसी को बी क्रॉस ए निकालना होता, तो अपने राइट हैंड के जो राइट हैंड है उसको रखता और ये थंब को जेड एक्सिस की तरफ रखता और ये 4 अंगुलियां जो इसकी तरफ रखता और इसको कर्ल करता, तो बी से ए की तरफ जाते और थंब का जो डायरेक्शन होता वो आपका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होता। तो इस बार तो थंब बोर्ड के अंदर में जा रहा है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ट द प्लेन होता, प्लेन के अंदर होता। तो प्लेन के अंदर तो कोई लाइन बना नहीं सकते, तो इसी में डॉट डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूं, डॉट डॉट लाइन से दिखाने की कोशिश में कर रहा हूं। वो प्लेन के अंदर वाला है, समझिएगा इसको, वो प्लेन के अंदर में है। ए क्रॉस बी किए थे तो प्लेन के बाहर आया था, बी क्रॉस ए करेगा अपना, आप राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करेंगे चारों अंगुलियां को बी से ए की तरफ, जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, तो जो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन आएगा वो होगा माइनस एन कैप, वो प्लेन के अंदर होगा। ये आउटवर्ड द प्लेन है, ये जो एन कैप है वो आउटवर्ड द प्लेन है, प्लेन के बाहर में है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन, ये प्लेन के बाहर में है। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से हम लोग प्लेन के बाहर जाते हैं, और क्लॉकवाइज में जब रोटेट करते हैं किसी भी चीज को तो प्लेन के अंदर में जाता है।
ये मैग्नेटिज्म चैप्टर जो होता है फिजिक्स के 12th क्लास में, उसमें भी हम लोग बताएंगे कि नॉर्थ में अगर हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज में किसी चीज को रोटेट करते हैं तो प्लेन के बाहर आते हैं, और क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो प्लेन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेशल पॉइंट करके लिख भी देते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो ये हम लोग सर्किल देके डॉट दिखा रहे हैं, यहाँ पे सर्किल देके डॉट दिखा रहे हैं, इसका मतलब हो गया आउटवर्ड द प्लेन, इसका मतलब हो गया आउटवर्ड द प्लेन, ये प्लेन के बाहर की तरफ, और सर्किल देके क्रॉस दिखा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में तो एक क्लॉकवाइज में, घड़ी की सुई घूमती है उसी के डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज में है तो एक सर्किल देके क्रॉस दिखा रहा है, इसका मतलब ये सर्किल के अंदर जाएगा, प्लेन के अंदर जाएगा, ये प्लेन के अंदर, और डॉट का मतलब प्लेन के बाहर, तो ये हो गया आपका इनवर्ट द प्लेन, इनवर्ट द प्लेन, ये प्लेन के अंदर हो गया। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी, तो आपका प्लेन के बाहर है, बी क्रॉस ए जो होगा आपका प्लेन के अंदर होगा, क्लॉकवाइज में अंदर होगा और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ होगा ये डॉट। तो ये सिंबल का मतलब है वो डिफरेंसर है। 1 सेकेंड, ये डिफरेंसर को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इससे एरो गायब हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, बी बचेगा और साइन थीटा बचेगा। आप यहां से साइन थीटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा इज गोइंग टू बी ए क्रॉस बी divided by AB, and this is the way how to calculate in cross product angle between two vectors. We take some example to clear it. एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है। आपको ए क्रॉस बी निकालना है, देन फाइंड ए क्रॉस बी। इस सिचुएशन में हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, या देन फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, इसका आप सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। देखिए ए क्रॉस बी बराबर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट का सिंबल बनाएंगे, इसमें रो के रॉन्ग लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, पहला में। दूसरा वाला में लिखेंगे 1 1 1, तीसरा वाला में लिखेंगे 2 3 2, इस तरह से लिखेंगे। अब डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको लिखे हैं, इसमें 3 गो रो है, पहला रो R1, दूसरा रो R2, तीसरा रो आपका R3 है, 3 कॉलम भी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे आपका सोल्व होगा प्लस आई कैप, और इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस रो इस कॉलम और इस रो के सारे एलिमेंट को बंद कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। बचेगा कौन कौन, 1 1 3 2 माइनस जे कैप। वापस से इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट को गायब कर देंगे, इस रो और इस कॉलम और इस रो, यानी 1 1 2 2 का एलिमेंट गायब हो गया, प्लस के कैप, ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, बचेगा 1 1 2 3। इस तरह से हम डिटरमिनेंट का हेल्प लेकर के ए क्रॉस बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, इसमें 3 रो और 3 कॉलम था, इसमें साइन हमने लिया प्लस माइनस प्लस। ये भी आप मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करके एक टॉपिक होता है, उसमें आप डिटेल से पढ़िएगा। बट फिजिक्स में जब कभी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो, 2 वेक्टर दिया गया हो और ए क्रॉस बी निकालना हो, तो आप पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखे और साइन के साथ लिखे प्लस माइनस प्लस। पहला रो का साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहां पर हमने प्लस आई कैप लिखा, फिर इस प्लस आई कैप इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना है, जिसको लिख रहे हैं उसके कॉलम और इसका रो गायब कर दो और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसको लिख दो, फिर माइनस जे कैप इस कॉलम
और इस रो के एलिमेंट को गायब कर दिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसको लिख दिए, फिर के कैप इसको और इसको गायब कर दिए, जो बचा लिख दिए। आप सॉल्व कर लो। तो आई कैप, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 होगा, माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 होगा, माइनस जे कैप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, और 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो वापस से 2 होगा, फिर प्लस के कैप 1 माइनस 3 करेंगे, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 होगा, माइनस 2 होगा। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकालना चाहता हूं मैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना चाहते हैं, मॉड दे दीजिए, ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर, यहां पे 3 में से 2 जाएगा, माइनस 1 सॉरी -1 माइनस आई कैप, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये जे वाला 0 होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। वापस से फिर भी मैं आपको समझने के लिए इसको लिख दे रहा हूं, -1 आई कैप माइनस 0 जे कैप और फिर +1 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 है, यहां पे ये -1 है, एक मिनट, आई कैप और ये माइनस है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये कितना आ गया, √2। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में दिया रहे तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इसी में आगे का कॉन्सेप्ट है। यहां भी हम बताएंगे आपको कि ये 3 तरह का यूनिट वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, 3 तरह का हम लोग यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। वही बात जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट में आपको पहले बताया है कि अगर पा लिया जाए प्लस एक्स एक्सिस के तरफ आप कंसीडर कर रहे हैं तो आई कैप, माइनस एक्स तो माइनस आई कैप, प्लस वाई की तरफ आप कंसीडर कर रहे हैं, प्लस वाई की तरफ आप कंसीडर कर रहे हैं तो जे कैप, माइनस वाई एक्सिस की तरफ है तो आपका माइनस जे कैप। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, जेड एक्सिस की तरफ है तो के कैप, माइनस जेड एक्सिस की तरफ है तो आप माइनस के कैप यूज करेंगे सिंबल। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 का मान जो होता है आपका वो 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0। देखिए आई क्रॉस अगर हम आई लेते हैं, नो डाउट ए क्रॉस बी का डिफिनेशन अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ए क्रॉस बी बराबर अभी क्या पढ़े थे, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और साइन थीटा। तो आई क्रॉस आई में क्या करेंगे हम लोग, आई का मॉडुलस और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस। यूनिट वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका तो 1 ही वैल्यू होगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड। और देखिए ये आई क्रॉस आई मतलब ए क्रॉस बी रहता था तो थीटा होता था ए और बी के बीच का एंगल, तो आई और आई है मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखेंगे तो थीटा का मान होगा 0 और साइन 0 का वैल्यू आपका वंस अगेन होता है 0, तो साइन 0 इज 0, तो आई क्रॉस आई इज 0। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, जे क्रॉस जे इज 0 एंड के क्रॉस के इज 0, के क्रॉस के इज 0। तो इस तरह का अगर आप सेम वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ क्रॉस लेंगे 0, जे का जे के साथ, के का के के साथ। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर हो तो उसके लिए अलग है। एक आप सर्किल बना ले, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको डिनोट करें, आई कैप, जे कैप और ये के कैप है। ये देखिए आप अलग अलग है,
हम अगला कॉन्सेप्ट इसी पे है कि अगर हम आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आई का क्रॉस जे के साथ लगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद कौन वाला वेक्टर आएगा? के कैप, तो आप के कैप लिख दे। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप आएगा। अगला वे आई क्रॉस जे लिख दिया, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के लिख दिया, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई अगर आप कीजिएगा तो जे कैप आएगा, तो आप जे कैप लिख दीजिए। अगर आप इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के बजाय अगर आप क्लॉकवाइज कर देते हैं तो इसके आगे आपको एक निगेटिव साइन देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू रिवर्स द डायरेक्शन, इसलिए आपको एक निगेटिव साइन देना पड़ेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, सारा का सारा साइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, घड़ी के सुई की दिशा में मूव करते हैं, मतलब आई आप उल्टा चलना शुरू करते हैं घड़ी के सुई की दिशा में, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज गोइंग टू बी माइनस के कैप, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, जे क्रॉस के, अगर आप जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस आई किया तो माइनस के कैप, आई क्रॉस के क्रॉस जे किया। एक मिनट वापस से इसको देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के नहीं करके आप यहां पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, तो आप आई क्रॉस के कर ले, आई क्रॉस के, दिस इज योर माइनस जे कैप, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो अगर आप डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे आप क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो इस तरह से आप डायरेक्शन मिलता है आपको। इसी में थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक आपका पैरेललोग्राम है जिसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर हम ए बी साइड को हेयर ए बी हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हेडिंग होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए कि ए बी साइड है जिसको हमने ए कहा, हेयर ए बी को हमने ए वेक्टर कहा और सी डी को हमने बी वेक्टर कहा, सी डी को हमने बी वेक्टर कहा। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा आपका वो ए क्रॉस बी होगा का मॉडुलस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आपका होगा वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। इसी में लास्ट कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऐसा P Q R S,
इसका जो डायगोनल होगा वो QS और PR होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होगा हाफ ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब SQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर। तो that is all about the vectors।